دوستو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ سے بہت سی باتیں واضح ہو جاتی ہے، جیسے انسانوں کی طرح جن بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور جنہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنات انسانوں کی طرح عقل و شعور بھی رکھتی ہے اور انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے کہ چاہے کسی بات کو مانیں یا انکار کریں، مگر روز حشر قیامت والے دن انسانوں کی طرح جنات کا بھی حساب و کتاب ضرور ہوگا اور اعمال کی بنا پر انہیں انسانوں کی طرح سزا و جزا دی جائے گی۔ جس طرح انسانوں کی الگ اور فرشتوں کی الگ دنیا ہوتی ہے، اسی طرح جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ انسان کی طرح وہ بھی تمام کام کرتے ہیں جو کام انسان کرتے ہیں۔ جنات کو یہ بھی طاقت حاصل ہے کہ وہ انسان کو دیکھ سکتی ہے، لیکن انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا سوائے کسی مخصوص جگہ یا وقت میں، یا جہاں کہیں انسان اسے محسوس کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں جنات کی تخلیق کی طرف کہ جنوں کو کب پیدا فرمایا گیا۔ جیسا کہ ان کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 27-26 میں آتا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ کہ ہم نے انسانوں کو مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر روایتوں سے بھی ملتا ہے کہ جنات کو تقریباً 2000 سال انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا۔ اسی طرح سب سے پہلے اللہ پاک نے جنوں میں ابلیس کو پیدا فرمایا۔ اگر ان کو جنوں کا باپ بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ابلیس اللہ پاک کا فرشتہ تھا، لیکن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا، لیکن ایسا بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے ابلیس کو یہ فرشتوں والا مرتبہ ملا، لیکن تھا ایک جن۔ اب چلتے ہیں جنات کے اقسام کی طرف۔ جو جن اپنی شکل و صورت میں رہتے ہیں انہیں جن کہا جاتا ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ جن مل کر رہتے ہیں ان کو عامر جن کہا جاتا ہے، اور جو جن لوگوں اور بچوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں ارواح کہا جاتا ہے، اور جو جن برے ہوتے ہیں انہیں شیاطین بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جنات کی آخری قسم جو غلیظ اور ناپاک جگہوں پر رہنا پسند کرتی ہے، لہٰذا انہیں خبیث جن کہا جائے تو یہ بھی غلط نہ ہوگا۔ دوستو، ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جنوں کی ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جو شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی طاقت کی مالک ہوتی ہے، اور اس طرح کے جنات کو عربی میں عفریت بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسے عفریت جن کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی ملتا ہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قال عفریت من الجن، کہا کہ ایک عفریت جن نے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی تخت بلقیس لے کر آئے بلقیس کے پہنچنے سے پہلے، تو عفریت جن نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ تو دوستو، جنات صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی 3 اقسام میں پائی جاتی ہے۔ ان میں سے جنات کی ایک قسم ایسی پائی جاتی ہے جو زمین پر نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتی رہتی ہے۔ دوسری قسم جو کتوں اور جانوروں اور سانپ وغیرہ کی شکل میں بھی پائی جاتی ہے، اور تیسری قسم جن کی ہے جو کبھی قیام کرتی ہے، کبھی چلتی رہتی ہے، اور انہیں بھوت پریت بھی کہا جاتا ہے۔ مگر دوستو، یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ انسان کبھی بھی اپنی آنکھ سے جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، اگر کتے سانپ وغیرہ کی شکل میں آ جائے تو پھر جنات کو ضرور دیکھ سکتا ہے، لیکن اللہ پاک نے کچھ جانوروں میں ایسی صلاحیتیں رکھی ہے جو جنات کو دیکھ سکتی ہیں۔ ان میں سے صرف 2 جانور شامل ہیں، ایک کتا
और गधे जो जिन्नात को देख सकते हैं। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि जब गधे की आवाज सुनो तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया करो। तो इस हदीस से ये बात वाज़ेह हो गई कि गधे जिन्नात को देखकर आवाज निकालते हैं। दोस्तों, अगर कोई जिन जानवर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, फिर उस पर जानवरों के तमाम कवानीन लागू हो जाते हैं। मसलन उस जानवर को अगर मारा जाए, वो कुत्ते की शक्ल ले ले, तो अगर उसको मारा जाए तो जिन भी मर जाएगा। जिन्नात पर एक और कानून लागू होता है। जिन्नात जिस जगह पर अपनी शक्ल तब्दील करती है, अगर उसे कहीं भी चले जाए, वापस अपनी शक्ल असल में आना है तो उसी जगह पर ही तब्दील कर सकती है, वापस आकर, उससे पहले नहीं कर सकती। जहां तक जिन्नात की शादी ब्याह का सवाल है, इसके सवाल के जवाब में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है सूरह रहमान में, आयत करीमा का मफहूम है कि जन्नत में मोमिनों के लिए हूरें मौजूद हैं। तो लिहाजा इस आयत करीमा से यह भी साबित हुआ कि इंसान की तरह जिन्नों पर भी तमाम कवानीन लागू होते हैं, तो जिन्नात भी अज़वाजी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जिन्नात के मौत के बारे में जिक्र करते हैं। जिन्नात की मौत भी इंसानों की तरह होती है, मगर उनमें एक इब्लीस है जिसको अल्लाह पाक ने कभी ये ताकत दी है कि वो कयामत तक जिंदा रहेगा और लोगों को बहकाता रहेगा, और जो लोग उनके बहकावे में आ गए उसे भी इब्लीस के साथ जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। इब्लीस की उम्र न बढ़ने की एक और वजह राज ये है कि जब भी इब्लीस की उम्र ज्यादा होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे फिर से जवान कर देता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी जिन्नात हैं वो पैदा भी होते हैं और उन्हें वफात भी आती है। लेकिन दोस्तों, इंसान के मुकाबले में जिन्नात की उम्र बहुत लंबी होती है। अब जिन्नात के रहने का मस्कन, जिन्नात वीरान गैर आबाद जगहों पर रहना पसंद करते हैं, बल्कि कुछ खबीस जिन नापाक जगहों पर रहना भी पसंद करते हैं, और जिससे पेशाब करने की जगह, बैतुल खला, शराब खाने और इनके अलावा जहां पर बेहयाई फैलाई जाए, ये जगह शैतान की पसंदीदा मस्कन है। लेकिन जब इंसान गुस्से की हालत में होता है तो ये जिन्नात उसमें दाखिल हो जाता है और उससे हर तरह का बुरा काम करवाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो शैतान उनके खून की रगों में दाखिल हो जाता है। और उनके अलावा जिन्नात की पसंदीदा जगह कब्रिस्तान, वीरान महल भी होते हैं। और यहाँ एक बात काबिल गौर है कि मुसलमान जिन्नात और काफिर जिन्नात रहने की जगह अलग अलग होती है। जबकि मुसलमान जिन्नात पहाड़ों की चोटियों पर और खबीस जिन्नात कब्रिस्तान वगैरह में रहना पसंद करते हैं। और इस बात का हवाला एक हदीस पाक में मिलता है कि हदीस पाक का मफहूम है कि एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर तशरीफ ले गए, तो उस सफर में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कज़ाए हाजत के लिए गए, तो पीछे से सहाबा किराम ने कुछ आवाजें समाअत फरमाई। तो जब हुजूर पाक साहिब उल-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सहाबा किराम अर्ज करने पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो आवाज आप सुन रहे थे, ये मुसलमान जिन्नात और काफिर जिन्नात की आपस में गुफ्तगू थी कि हम कहां पर रहें, किसका कहां पर मस्कन होना चाहिए। तो मुझे अमीन बनाया गया, मैंने उन दोनों फरकैन के दरमियान फैसला फरमाया और मुसलमान जिन्नात पहाड़ों की चोटियों पर रहे, जबकि काफिर जिन्नात नीचे रहे। तो इन दोनों फरकैन जिन्नात ने मेरे इस फैसले को कबूल फरमाया। तो दोस्तों, एक और बात आपको बताता चलूं कि शयातीन जिन्नात बहुत ही बदसूरत होते हैं। जैसा कि रब्बे करीम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, आयत करीमा का मफहूम है कि जो जहन्नम के नीचे से दरख्त निकलता है उनका फल जिन्नों के सर जैसा है। दोस्तों, जिन्नात को अल्लाह पाक ने कई खूबियों और ताकतों से नवाजा है। उनके अलावा जिन्नात बड़ी बड़ी तामीरात भी करते हैं, जिसका जिक्र हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से मिलता है कि जब अल्लाह पाक ने जिन्नात को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमा दिया तो जिन्हों ने बड़ी बड़ी इमारतें तामीर की
और देगें बनाई और बड़े बड़े हौज तक बनाए। जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात को कहीं खूबियों से नवाजा है, वहीं जिन्नात में बेशुमार कमजोरियां भी पाई जाती है। मसलन अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों को शैतान नहीं बहका सकता, और हक तआला के कुछ नेक बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिसे देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर देता है। जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना उमर फारूक आजम को देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। लेकिन दोस्तों, उनके अलावा जिन्नात ख्वाब में भी मुख्तलिफ शक्लें लेकर आ सकती है, जैसा कि अक्सर ख्वाब में जो आता है वो शैतान वगैरह होते हैं। ख्वाब में तमाम शक्लें तो लेकर आ सकती है जिन्नात, लेकिन नबी पाक साहिब रौनक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में कभी भी जिन्नात इख्तियार नहीं कर सकती, चाहे वो ख्वाब की हालत में हो या जिंदगी में हो। और जो काफिर जिन्नात हैं, जो जिन काफिर हैं जिन्हें शयातीन कहा जाता है, वो उसी जगह दाखिल हो सकते हैं जिस पर बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़ी जाए। मुस्लिम जब भी घर में दाखिल होना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए, जिसकी हकीकत हदीस पाक में भी मज़कूर है कि अगर तेल लगाना हो तो उसे बिस्मिल्लाह शरीफ न पढ़ी गई तो उस पर 70 शैतान तेल लगाने में शामिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जिन्नात इंसान की जो दुश्मन है ये कब से है और कहां से चली आ रही है। जी दोस्तों, जिन्नात इंसान जिनके दरमियान जो दुश्मनी है वो आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से चली आ रही है। शैतान ने कहा कि मैं आग की पैदाश हूँ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी की पैदाश है, लिहाजा मिट्टी का मर्तबा जो है वो आग से कम है, आग का मर्तबा ज्यादा है, क्योंकि आग बुलंद होती है, मिट्टी बल्कि नीचे चली जाती है। लेकिन शैतान की तमाम बातें तकब्बुर पर मबनी थी, लेकिन आग नुकसानदेह जला देती है, जबकि असल में मिट्टी जमीन को आबाद करती है और इससे घर तक आबाद होते हैं। लेकिन दोस्तों, जिन्नातों में जो मुसलमान है वो इंसानों से कोई दुश्मनी नहीं रखते। आपको एक बात इंटरेस्टिंग बताता चलूं कि इब्लीस अपना तख्त रोजाना पानी पर लगाता है और वहां पर शयातीन के तमाम औलाद और वो चेले जो होते हैं, गुलाम, वो तमाम जमा हो जाते हैं और अपने तमाम हालात शैतान के सामने बयान करते हैं कि आज किस किस ने क्या क्या काम किया। ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि इब्लीस उनसे ज्यादा खुश होता है जो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करके जुदाई करवा देता है। तो दोस्तों, शैतान हमेशा इंसान को बहकाता हुआ आ रहा है। इससे बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ वाहिद तरीका है, वो है उनके पैदा करने वाले रब से उनके फितनों से पनाह मांगना। और जिन्नात इंसान पर कब हमला करता है? जी दोस्तों, जिन्नात इंसान पर हमला करने की कुछ वजह होती है कि जब इंसान नापाकी की हालत में होता है या नशे वगैरह की हालत में होता है, अक्सर व बेशतर नंगा गुस्ल करना वगैरह। कुरान पाक में जो इंसानों के लिए हिदायत रहनुमाई उतारी गई है वो इंसानों के लिए काफ़ी है और इससे बचने का मुकम्मल गाइड किया गया है, मगर कसूर हमारा है कि हमने कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना छोड़ दिया। ये तमाम तर चीज़ें हमारे कुर्ब अज़ां से हट जाए, हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के फरमा बरदार यानी कि बन जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला का दिल में खौफ रखें और कुरान पाक की तालीमात पर अमल करें, हमेशा पाक साफ रहें, तो इंशाअल्लाह इन जिन्नात से आप तमाम तर महफूज रहेंगे। जिन्नात आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंटरेस्टिंग वीडियो मिल पाए और बहुत कुछ सीख पाए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंचे।